Assalamu alaikum students. As you all know, this is the book that we will be using for your course of Introduction to Psychology, which is a general course in your BS curriculum. The name of the book is Essentials of Understanding Psychology, 8th edition, and it has been written by Robert S. Feldman. It is one of the books that is being internationally used and very highly recommended for the course of Introduction to Psychology. It is an easy book, it is very easy to use, it is simple, the language used is simple, it has lots of activities, it has got summaries, different sections, it has definitions and concepts outlined in the margins. It is one book that if you master, it really helps you get through your exams and all the other things that you need to get through. As you all know that the course outline includes 10 chapters. This book has more than that, but for people like you who are not taking a basic course in psychology, the 10 chapters that we are going to cover are going to be more than enough. Let's have a look at the book. It is written by Robert S. Feldman and it is the 8th edition. The soft copy has already been shared with you using the different WhatsApp platforms of each of your classes. First of all, this is the author. He is a professor of psychology and he is from America. He has worked at different universities. These are the contents of the books, most of which we will be covering. And first, we are going to start with chapter number 1 today. And the chapter number 1 is about Introduction to Psychology. So let's just jump to that. The first chapter is the Introduction to Psychology and it is going to discuss these key concepts. First of all, what is the science of psychology, what are the specialities and where they can work. The second module is about the history of psychology, the basics and what is the future of psychology. The third module is about research in psychology and then fourth module is about the challenges and different ideas of psychology. So first of all, what is psychology? साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. यहाँ पे दो चीज़ें ज़रूरी हैं जिनको आपने देखना है. पहला तो ये कि साइकोलॉजी एक साइंस है और इसको हम साइंटिफिक स्टडी में करते हैं, और दूसरा हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के बीच में. एक और डेफिनेशन जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं दैट इज़ दैट साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड या माइंड एंड बिहेवियर. The first thing that you have to focus on is the difference between mind and brain. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे उर्दू में हम जहन और दिमाग को अलग अलग करते हैं. The mind is the function. जो कुछ हो रहा है वो माइंड है. आप सोचते हैं, आपकी थिंकिंग, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आपका जजमेंट मेकिंग प्रोसेस, किस तरह से आपका माइंड फंक्शन करता है, ये मेंटल प्रोसेसेस में आ जाता है जिनको हम कलेक्टिवली कॉग्निशंस कहते हैं. जो आपका ब्रेन है वो एक्चुअली वो ऑर्गन है जो आपके स्कल के अंदर मौजूद है, जिसको हाथ लगाया जा सकता है, जो टेंजिबल है, जिसको स्टडी किया जा सकता है डिफरेंट टेस्ट्स के थ्रू, जिसको हम फिज़िकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से उसको हम स्कैन कर सकते हैं. जो जो उसमें हो रहा है वो स्ट्रक्चरल है, वो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं. साइकोलॉजी इज़ बेसिकली कंसर्न विद द फंक्शन, यानी कि मेंटल प्रोसेसेस और माइंड के साथ हमारा कंसर्न ज़्यादा है. ब्रेन के साथ हम इतना ज़्यादा डील नहीं करते सिवाय एक दो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के साथ जिनकी स्पेशलाइजेशन ही बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है. सो साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. बिहेवियर का मतलब है वो तमाम एक्शंस, वो तमाम किरदार और अमाल जो हम किसी को करते हुए देख सकते हैं. सो एक तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल में. मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं हैं, दे आर नॉन ऑब्जर्वेबल, दे आर नॉन टैंजिबल. आप उनको डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं. और बिहेवियर जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है और उसको आप डायरेक्टली देख सकते हैं. जब हम फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं तो देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स. साइकोलॉजी जो है वो ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ इंटरेक्ट करती है और इसकी सब ब्रांचेस हर साइंस के साथ मौजूद हैं.
It is one of the very basic things that is interacting everywhere, because इंसान जो है वो हर चीज़ में आपकी जो माइंड और आपका बॉडी है वो हर चीज़ के साथ इंटरेक्ट करके डिफरेंट बिहेवियर्स शो करता है, और इसी वजह से डिफरेंसेस जो है वो सामने आते हैं. सो साइकोलॉजी इज़ बेसिकली अ वेरी डीप रूटेड स्टडी, और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस मौजूद हैं जिन पे हम एक नज़र इधर डाल लेंगे. सबसे पहले है आपकी बिहेवियरल जेनेटिक्स. ये वो स्टडी है जो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के साथ डील करती है रिलेटेड टू बिहेवियर, यानी कि आपने क्या चीज़ें जेनेटिकली इनहेरिट की हैं जो आपके बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रही हैं. बिहेवियरल न्यूरोसाइंस एग्जामिन्स द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर. जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी ऐसी हैं जो डायरेक्टली बायोलॉजिकल बेसिस को चेक करती हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज. डिफरेंट केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स किस तरह आपके बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं. बिहेवियरल न्यूरोसाइंस स्टडीज दैट. Then we have clinical psychology. Clinical psychology deals with the study, diagnosis and treatment of psychological disorders. Clinical psychologists hospitals में काम करते हैं और ये diagnosable disorders के साथ काम करते हैं. Clinical neuropsychology बायोसाइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी का क्रॉस है, और ये फोकस करता है उन बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं, या वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट हो सकते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का. Then we have cognitive psychology. As I said कि cognitions refer to all the higher mental processes. तो cognitive psychology study करती है तमाम higher mental processes को, including your memory, your intelligence, your judgment making, your thinking, everything. काउंसलिंग साइकोलॉजी फोकस करती है प्राइमरीली ऑन एजुकेशन एंड सोशल एंड करियर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, यानी कि जो एवरीडे इश्यूज़ हैं आपके, जो कि डिसऑर्डर्स नहीं हैं, जिनके लिए हेल्प चाहिए है क्लाइंट को, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए लेकिन वो डिसऑर्डर्स नहीं हैं, उनके लिए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं. क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी डिफ्रेंशिएट करती है डिफरेंट कल्चर्स में और किस तरह से उनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस हैं और किस तरह से वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं बिहेवियर्स को. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एग्जामिन करती है बर्थ, समटाइम्स प्री बर्थ से लेके डेथ तक किस तरह से बिहेवियर्स चेंज हो रहे हैं, हर एज में क्या सीख रहे हैं हम नया लर्न कर रहे हैं, क्या चीज़ें हम ख़त्म कर रहे हैं अपने बिहेवियर में से, ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडी करती है. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस, और इसका जो बिग फोकस है वो रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन ऑफ एंड स्कूल परफॉर्मेंस के ऊपर है. यानी कि बेसिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, मोटिवेशन को बेहतर कैसे किया जा सकता है, स्कूल परफॉर्मेंस बेहतर कैसी बनाई जा सकती है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्टडी मटेरियल है. Environmental psychology considers the relationship between people and their physical environment, यानी कि आपका माहौल जो है वो किस तरह से आपके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है और आपका बिहेवियर किस तरह से आपके इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है. एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कंसिडर करती है बिहेवियर और उसके इन्फ्लुएंसेस को विद जेनेटिक इनहेरिटेंस फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, लेकिन ये सिर्फ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन नहीं बल्कि थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री को स्टडी करती है. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी स्टडी करती है तमाम प्रोसेसेस को जिनमें सेंसेशन, परसेप्शन, लर्निंग और थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड आ जाता है, और ये स्टडी करती है इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली इन द लेबॉर्ट्री, और किस तरह से लैब वर्क जो है वो साइकोलॉजी की फील्ड में इंटरेक्ट करके इसको साइंस बनाता है. ये फोकस है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का. फोरेंसिक साइकोलॉजी जो है वो लीगल इश्यूज़ में काम करती है, और फोरेंसिक साइकोलॉजी में ये डिटर्मिन किया जाता है कि विटनेसेस जो हैं उनकी मेमोरीज़ वगैरह ठीक हैं या नहीं, और आमतौर पे कोर्ट में और पुलिस वगैरह में जो लोग काम करते हैं वो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं. हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फिजिकल एलिमेंट्स एंड डिजीज़ को देखती है, यानी कि कोई फिजिकल इलनेस जो है वो किस तरह से इंसान की साइकी को इफ़ेक्ट करती है, और कोई भी साइकोलॉजिकल डिजीज़ जो है वो किस तरह से इंसान की फ़िज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है. इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी फोकस करती है साइकोलॉजी ऑफ द वर्क प्लेस के ऊपर, किस तरह से आप किसी इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से उनको आप बेहतर वर्क प्लेस दे सकते हैं, और किस तरह से वर्क प्लेस में उनकी जो मोटिवेशन है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है. पर्सनालिटी साइकोलॉजी फोकस करती है कंसिस्टेंट बिहेवियर के ऊपर और ट्रेट्स के ऊपर जो इंसान की पर्सनालिटी बनाते हैं, और इसका फोकस ये होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान की पर्सनालिटी में क्या फ़र्क होता है.
پروگرام ایویلیویشن ہم وہاں یوز کرتے ہیں جہاں ہم نے بیہیورل چینجز کے لیے لارج اسکیل پروگرامز جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا ہوا ہوتا ہے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ افیکٹو تھے, انہوں نے اپنے گولز جو ہیں ان کو پراپرلی میٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. سائیکالوجی آف ویمن فوکس کرتی ہے ایشوز آف ڈسکریمنیشن, ویمن ڈفرینسز, جس طرح سے مین اور ویمن کی سائیکی آپس میں ڈفرینٹ ہے, وائلنس اگینسٹ ویمن کس طرح سے ہوتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس کس طرح سے ہوتا ہے, ورک پلیس پہ کیا ایشوز فیمیلس کو فیس کرنے پڑتے ہیں, ایٹسیٹرا. اسکول سائیکالوجی جو ہے یہ کاؤنسلنگ آف چلڈرن ان ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری اسکولس کے اوپر فوکس کرتی ہے, اسپیشلی وہ بچے جن کو اکیڈیمک یا ایموشنل پرابلمس آ رہے ہیں یا جن کی فیملی لائف ڈسٹربڈ ہے, وہ اسکول سائیکالوجسٹ سے بینیفٹ کر سکتے ہیں. Social psychology is the study of how people's thoughts, feelings and actions are affected by others. And sports psychology جو ہے وہ athletic activity اور exercise کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, کس طرح سے sports میں بہتر پرفارمنس کے لیے آپ psychology کو یوز کر سکتے ہیں. So these are some branches of psychology اور ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان پیجز میں گیون ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب دا نیکسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے اس کے سائیکالوجسٹ کام کہاں کرتے ہیں, ان کا اسکوپ کیا ہے, ان کی جابس کہاں کہاں سے ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے تو اکیڈیمک اسٹڈیز سیٹنگس میں ہو سکتی ہیں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ایٹسیٹرا. دین اسکولز ان کو امپلائی کرتے ہیں. پاکستان میں یہ کرنٹلی نیا کانسیپٹ ہے, بہت کم اسکولز ہیں جن نے اسکول سائیکالوجسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں, بٹ پنجاب میں دانش اسکولز یہ کر رہے ہیں اور کچھ بڑے اسکولز سچ ایز ایچسن اینڈ صادق پبلک اسکول, وہاں پہ بھی سائیکالوجسٹ موجود ہیں. پرائیویٹ پریکٹس کی جا سکتی ہے, ہاسپٹل سیٹنگز میں کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کلینکس اور ہاسپٹلس میں بالکل ویسے ہی کام کر سکتے ہیں جیسے ڈاکٹرز کام کرتے ہیں. اس کے بعد ڈفرینٹ سروسز سچ ایز این جی اوز ایٹسیٹرا بھی آپ کو ہائر کرتی ہیں. اس کے علاوہ بزنس, گورنمنٹ یا ادر سیٹنگز میں آپ کو جاب مل جاتی ہے. پاکستان میں آپ کو آرمڈ فورسز ہائر کرتی ہیں سائیکالوجسٹ, آپ کو پولیس میں, جیل سیکٹر میں جو ہے جاب مل سکتی ہے, اسپیشل ایجوکیشن میں جاب مل سکتی ہے, اور دیز آر آل ویری گڈ اپرچونیٹیز فار سائیکالوجسٹ ٹو ورک ان پاکستان. سائیکالوجی میں کیا کیا ہو سکتا ہے. سائیکالوجی پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاک تک کی ڈگری ہے آل اوور دا ورلڈ انکلوڈنگ پاکستان, اور اگر آپ اس میں پراپر ٹریننگ کرتے ہیں تو یو کین ہیو اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ آف اٹ, اور آپ کو بہت اچھے جاب پراسپیکٹس جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. یہ اس کے چیپٹر کی سمری ہے, آپ کائنڈلی اس کو دیکھ لیجیے گا, اینڈ دین وین وی ہیو دا لیکچر یو کین آسک اینی کویشچنز دیٹ یو وانٹ. Thank you very much. I'll meet you next time in the next lecture.